Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students, how are you all? I hope you all are good. We are going to learn about computer science. You know very well, computer is an electronic machine that is used to solve our problems according to the given instructions. We can also store a large amount of data in the computer's memory. Nowadays, computers are used in almost every field of life for different purposes. Today we start chapter number 3, which is named as control structure. It is a structure that is used to control the flow of execution in a program. जब भी हम अपना प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कोई प्रोग्राम राइट करते हैं तो उस प्रोग्राम में हम स्टेप्स राइट करते हैं इन अ सीक्वेंस. इन स्टेप्स को हम कहते हैं एल्गोरिथम. तो एल्गोरिथम का फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन चेक करने के लिए हम कंट्रोल स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं. फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन मीन्स हमने ये चेक करना है कि सबसे पहले प्रोग्राम में कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, सेकंड नंबर पे कौन सी एग्जीक्यूट होगी एंड सो ऑन. सो वी कैन डिफाइन इट एज कंट्रोल स्ट्रक्चर कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन in a program. In programming language, which is named as BASIC, there are 3 types of control structures. These are sequence, selection and loop. All programs use some of these control structures to implement the program logic. We will discuss all these types one by one. Firstly, I will explain selection structure. This is a structure that helps us to select which statement is to be executed. सिलेक्शन स्ट्रक्चर से हमें किसी भी स्टेटमेंट को सेलेक्ट करने में हेल्प मिलती है कि कौन सी स्टेटमेंट हमने एग्जीक्यूट करवानी है. वी कैन से आ सिलेक्शन स्ट्रक्चर चूजेस विच अल्टरनेटिव प्रोग्राम स्टेटमेंट्स टू एग्जीक्यूट. सिलेक्शन स्ट्रक्चर हैज़ 2 टाइप्स विच आर इफ देन स्टेटमेंट एंड इफ देन एल्स स्टेटमेंट. If we talk about if then statement, we must say that this is a decision making statement which is always depends on a decision. In this statement we use 2 keywords which are if and then. The keyword if contains condition and the keyword then contains statement. If the condition is true, then the statements are executed. We can say that it is a decision making statement. Depending upon the decision, it can change the order of program execution. It is also used to select a path flow in a program based on a condition, where कंडीशन इज़ एन एक्सप्रेशन दैट evaluates टू ट्रू और फॉल्स. ये एक ऐसा एक्सप्रेशन है जो ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है. अगर कंडीशन ट्रू होगी तो देन की स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी. द सिंटैक्स फॉर राइटिंग इफ देन स्टेटमेंट इज एज इफ एक्सप्रेशन देन स्टेटमेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट द कीवर्ड इफ इन कैपिटल लेटर्स. आफ्टर दिस वी हैव टू राइट अ कंडीशन. Condition may be any expression that may be true or false. After this we have to write a keyword then, and in the last we will write the statements that are to be executed. The syntax for if then statement can also be written as if expression then line number. हम statement की place पे line number भी mention कर सकते हैं जिसको हम execute करवाना चाहते हैं. You can also see a flowchart for if then statement on your screen. It depends on the condition, and in the condition expressions are given. If the expression is true, then the statement at the specified line number or the statement following the then keyword is executed. अगर condition true होगी तो then statements execute हो जाएंगी. For example, we have to write a program to find out the train fare depending on the kilometers traveled. The minimum fare charge is ₹6. This minimum fare charge remains valid for 5 km traveling distance or less. After 5 km, 0.75 rupees per kilometer are added to the fare. हमने एक प्रोग्राम राइट करना है जो डिपेंड कर रहा है किलोमीटर्स पे. इट मीन्स हम कंडीशन में किलोमीटर्स लेंगे क्योंकि प्रोग्राम हमेशा कंडीशन पे डिपेंड करता है. इस प्रोग्राम में हमने ये शो करना है कि अगर डिस्टेंस 5 किलोमीटर या फिर 5 किलोमीटर से कम है तो उसका फेयर 6 रुपीज़ होगा, और अगर डिस्टेंस 5 किलोमीटर से ज़्यादा है तो हर किलोमीटर के हिसाब से 0.75 रुपीज़ उसमें ऐड कर दिए जाएंगे. तो प्रोग्राम राइट करने के लिए सबसे पहले हम कंप्यूटर को इनपुट देंगे, और इनपुट देने के लिए हम इनपुट स्टेटमेंट यूज़ करेंगे. इन द फर्स्ट लाइन नंबर 10 में वी विल राइट इनपुट इन कैपिटल लेटर्स एंड किलोमीटर इन इन्वर्टेड कोमास.
इन्वर्टेड कॉमास में हम जो भी स्ट्रिंग राइट करते हैं वो एज इट इज स्क्रीन पे प्रिंट हो जाती है। आफ्टर दिस वी हैव टू एंटर द वैल्यू ऑफ किलोमीटर। जो भी हम किलोमीटर की वैल्यू एंटर करेंगे वो के में स्टोर हो जाएगी। इन द सेकेंड लाइन नंबर 20 we will use if then statement. With if we will write condition and with then keyword we will write the statements that are to be printed. For this we will write if k is less or equal to 5 then print ₹6. अगर k की वैल्यू किलोमीटर्स लेस देन और इक्वल टू 5, किलोमीटर्स जो हमने कीबोर्ड से एंटर किए हैं वो 5 या 5 से कम है, देन प्रिंट ₹6, तो ₹6 स्क्रीन पे प्रिंट हो जाए। आफ्टर दिस वी विल राइट एंड और यहीं पे प्रोग्राम एंड हो जाए। लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स है, k इज़ लेस देन 5, हमने कुछ भी 5 से बड़ा एंटर कर दिया है, कंडीशन फॉल्स हो गई है, तो कंट्रोल नेक्स्ट लाइन नंबर 30 पे आ जाएगा। यहाँ पे फार्मूला राइट किया हुआ है चार्ज का, तो फिर चार्ज कितना होगा इस हिसाब से हमारा चार्ज स्क्रीन पे प्रिंट होगा। जितनी भी स्टेटमेंट्स रिमेनिंग हैं वो सारी की सारी अब प्रिंट हो जाएंगी अगर कंडीशन फॉल्स होगी। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो फिर देन की स्टेटमेंट ही प्रिंट होगी। Here we will learn about if then else statement. This is another type of selection structure. In this type we use 3 keywords which are if, then and else. If के साथ हमेशा हम condition राइट करते हैं, then और else के साथ हम statements राइट करते हैं। ये दोनों statements condition पे डिपेंड करती हैं। अगर if की condition true होगी तो then की statements execute होंगी, अगर if की condition false होगी तो else की statement execute होंगी। Both statements can never be executed and can never be skipped. दोनों statements को हम skip भी नहीं कर सकते और दोनों को execute ही नहीं करवा सकते। दोनों में से एक execute होगी और एक skip होगी। अगर if की condition true है तो then की statement execute होगी और else की statement skip होगी। इसी तरह अगर if की condition false है तो then की statement skip होगी और else की statement execute होगी। We can say the keyword else is used to specify 2 different alternatives with if statement which are based on condition one of 2 alternatives is executed. दोनों में से एक ही execute होगा। Where condition is an expression that evaluates to true or false. Condition true भी हो सकती है और false भी हो सकती है। It is a decision making statement. It decides the path of the program. It helps in making comparison and testing whether a condition is true or not. The syntax for writing if then else statement is as if expression then statements true task else statements false task. अगर कंडीशन ट्रू होगी तो then की स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, अगर if की कंडीशन false होगी तो else की स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। Another syntax for writing if then else statement is if expression then line number else statements false task. अगर कंडीशन ट्रू है तो देन में जो भी हमने लाइन नंबर मेंशन किया हुआ है स्टेटमेंट की प्लेस पे वही लाइन एग्जीक्यूट होगी, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो एल्स में जो भी स्टेटमेंट्स राइट की हुई हैं वो एग्जीक्यूट होंगी। यू कैन ऑल्सो सी अ फ्लो चार्ट ऑफ इफ देन एल्स स्टेटमेंट ऑन योर स्क्रीन। इफ द एक्सप्रेशन इज ट्रू देन द स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड, इफ द एक्सप्रेशन इज फॉल्स देन द स्टेटमेंट्स ऑफ एल्स आर एग्जीक्यूटेड। दोनों सूरतों में एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो सकती है, दोनों स्टेटमेंट्स को हम स्किप नहीं कर सकते और दोनों स्टेटमेंट्स को एक साथ एग्जीक्यूट भी नहीं करवा सकते। एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो सकती है और एक ही स्टेटमेंट स्किप हो सकती है। अगर एक्सप्रेशन ट्रू होगा तो देन की स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, अगर एक्सप्रेशन फॉल्स होगा तो एल्स की स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। इन दिस एग्जाम्पल वी विल यूज इफ देन एल्स स्टेटमेंट। द एग्जाम्पल इज गिवन एज एजेस ऑफ डिफरेंट कैंडिडेट्स अपीयरिंग बिफोर अ सिलेक्शन बोर्ड ऑफ PIA आर एक्सेप्टेड थ्रू द कीबोर्ड। If the age is below 17, the candidate is not eligible for the announced post. Otherwise, he can appear for test and interview. हमने एक प्रोग्राम राइट करना है जिसमें हमने PIA के लिए सिलेक्शन करनी है। ये डिपेंड कर रही है एज पे। अगर एज 17 या फिर 17 से बिलो है तो हमने प्रिंट करवाना है कैंडिडेट इज़ नॉट एलिजिबल, लेकिन अगर एज 17 से अबव है तो फिर हमने प्रिंट करवाना है कैंडिडेट इज़ एलिजिबल। तो सबसे पहले हम कीबोर्ड से एज को एंटर करने के लिए इनपुट स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। फर्स्ट लाइन नंबर 10 में हम यूज़ करेंगे इनपुट स्टेटमेंट। वी विल राइट इनपुट इन इन्वर्टेड कॉमास वी विल राइट एज। इन्वर्टेड कॉमास में हम जो भी राइट करें वो एज इट इज़ स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। आफ्टर दिस वी यूज़ अ वेरिएबल ए। जो भी वैल्यू हम कीबोर्ड से एंटर करेंगे
वो ए में सेव होगी। इन द सेकेंड लाइन वी विल यूज़ इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट। इफ़ के साथ हमेशा हम कंडीशन राइट करते हैं, देन और एल्स के साथ स्टेटमेंट्स या फिर लाइन नंबर। यहाँ पे देन और एल्स के साथ लाइन नंबर दिए गए हैं और ए के साथ कंडीशन, इफ़ के साथ कंडीशन। इफ़ ए इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू 17, अगर ए की वैल्यू 17 के इक्वल या फिर 17 से बड़ी है, ए यहाँ पे है एज की वैल्यू जो हमने कीबोर्ड से एंटर की है। इफ़ द वैल्यू ऑफ ए इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू 17 देन 30, तो फिर लाइन नंबर 30 प्रिंट करवा देनी है हमने। लाइन नंबर 30 देखें, इस पे लिखा हुआ है प्रिंट कैंडिडेट इज़ एलिजिबल, तो ये स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा कैंडिडेट इज़ एलिजिबल अगर इफ़ की कंडीशन ट्रू होगी। इसके बाद कंट्रोल नेक्स्ट लाइन पे आएगा, लाइन नंबर 40 पे। हेयर इज़ रिटन गो टू 60। गो टू भी एक कीवर्ड है जिसके ज़रिए कंट्रोल 60 लाइन पे मूव हो जाएगा और 60 लाइन पे लिखा है एंड, इससे हमारा प्रोग्राम एंड होगा। लेकिन अगर इफ़ की कंडीशन फॉल्स है, ए इज़ नॉट ग्रेटर देन 17, 17 से बड़ा नहीं है, 17 से छोटा है, तो फिर एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। एल्स के साथ लिखा हुआ है लाइन नंबर 50। लाइन नंबर 50 पे है प्रिंट कैंडिडेट इज़ नॉट एलिजिबल, तो फिर यहाँ पे स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा कैंडिडेट इज़ नॉट एलिजिबल। आफ्टर दिस कंट्रोल मूव टू द नेक्स्ट लाइन विच इज़ लाइन नंबर 60 और यहीं पे हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। You have to remember the syntax for writing if then statement and if then else statement. Thanks to all of you for sharing your precious time. Allah Hafiz.